Dear all, now let us discuss what could be the expression for lateral displacement. इसका just पहला लेक्चर में हमने lateral displacement है क्या चीज वो हमने देख लिया. lateral displacement क्यों होता है, कैसा होता है, ओके उसको lateral displacement ही क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया. And it is almost the same diagram except a few labelings is the same thing only. So diagram ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना मैं कहना चाहूंगा लाइक इधर मैंने PS जो साइड है उसको मैंने थिकनेस कंसीडर किया हुआ है एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल लेटर x से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड ये देखिए ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसको मैंने इधर CE मार्क किया हुआ है. Alright, and another thing that I should explain about this diagram is you know that this AB, this angle, this I1, this was a angle of incidence. So if this is I1, so this entire angle that also has to be I1, like angle EBF that also has to be equal to what you can say I1. So if I can mark this as say N, all right, if I can mark this as N, so this angle ABN equal to I, fine. So therefore I can say angle EBF that also must be equal to what, I. All right, now we know that angle CBF that equal to angle R1. You can see it is I1, so I1, so here it is R1. So what should be this angle EBC? That has to be equal to, of course, I1 minus R1. Okay, so that is marked over here, I1 minus R1. All right, so that marking is there. Rest all it is the same thing only. So that there are a few changes. And another thing is that ये जो CE lateral displacement, we know that ये perpendicular distance को ही lateral displacement कहते हैं. So lateral displacement मैंने इधर create किया हुआ है as CE, I can see. So this become a right angle triangle. Okay, so here it is a right angle triangle. आप देख सकते हैं 90 डिग्री मार्क किया हुआ है and here also इसको 90 डिग्री मार्क किया हुआ है because ये भी एक right angle triangle. Okay, so ये जो दो right angle triangle का marking इधर है और कोई चेंजेस नहीं है. सो प्रीवियस डायग्राम के विद रिस्पेक्ट टू इधर का डिफरेंस ये कि एक तो I1 माइनस R1 एंगल मार्क किया हुआ है. लैटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हुए I just created a right angle triangle that is BCE. ओके, और साथ साथ मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल इधर मार्क किया हुआ है that is BCF. So this is all about that briefing of the diagram. Okay, now सबसे पहले आप देखिए ट्रायंगल BEC, राइट एंगल ट्रायंगल BEC. सो ये राइट एंगल ट्रायंगल BEC मैंने आपके लिए इधर दोबारा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. सो दिस इज ट्रायंगल BEC. So this is that perpendicular distance जिसको हम lateral displacement कहते हैं. This was that angle I1 minus R1. ये कहाँ से आ गया आपको पता है. So this is the perpendicular side and here this is hypotenuse. Okay, here this is the perpendicular side. So we know that perpendicular side that is CE upon hypotenuse BC that has to be equal to sin theta. इधर theta बोले तो I1 minus R1. So sin of I1 minus R1 हो गया. So इधर मुझे CE का वैल्यू मिलेंगे क्या, BC sin I1 minus R1. ध्यान रखना हमारा जो डेरिवेशन है वो CE का वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करने का अटेम्प्ट है which is lateral displacement. So CE का टर्म तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है. ओके, नाउ इधर मेरे लिए अननोन वैल्यूज क्या क्या है. एक तो BC मेरे लिए अननोन वैल्यू है और इधर R1 मेरे लिए अननोन वैल्यू है. बिकॉज वी कैन मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस, we can measure thickness, we know about the refractive index of glass with respect to air, है ना. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम मेजर कर सकते हैं, थिकनेस हम मेजर कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं, बाकी कोई चीज हम मेजर कर नहीं सकते इसमें. सो हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करना है ये तो हमें फाइंड आउट करना है ही है, स्मॉल लेटर x.
चलो ठीक है। सो रिप्लेसमेंट किस किसका चाहिए, एक तो BC का रिप्लेसमेंट चाहिए और एक R1 का रिप्लेसमेंट चाहिए। अब इसका रिप्लेसमेंट ढूंढते। ओके, सो फाइनली मैंने x का फॉर्म लिख रहा हूँ, x इक्वल टू BC टाइम्स साइन ऑफ व्हाट I1 माइनस R1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा। कौन सा ट्रायंगल, अब देखिए, एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब ये वाला ट्रायंगल पे आऊंगा। कौन से ट्रायंगल, BFC या BCF। ऑलराइट, देखो वो ट्रायंगल कैसे, वो ट्रायंगल कंसिडर करते वक्त आप देखना, ये देखिए, दिस इज द ट्रायंगल BCF। सो हमें किसका वैल्यू चाहिए, BC का वैल्यू चाहिए। ओके, इस पे आप देख सकते हैं, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, यानी कि R1। ओके, सो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर साइड, ये मेरा हाइपोटेन्यूज। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि T बाई BC इक्वल टू क्या हो जाएंगे, cos R1। ओके, वही मैंने इधर लिया हुआ है। सो BC का टर्म आ गया, BC इक्वल टू व्हाट, T अपॉन cos R1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ओके, अब हम इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में उठा के डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 में दिस वाज BC, आपको याद होगा दिस वाज BC। ओके, सो BC का जगह मैंने क्या पुट किया, T अपॉन cos R1 पुट किया। ऑलराइट, फाइन। सो BC का टर्म T अपॉन cos R1 का टर्म में आ गया। अभी भी हमारे पास चैलेंज क्या है, ये देखिए, ये चैलेंज है। अब इसको हटाना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करेंगे। कैसे, वी नो दैट sin A माइनस बी इक्वल टू sin A cos B माइनस cos sin B होता है। Considering that, I can write sin I1 minus R1 equal to sin I1 cos R1 minus cos I1 sin R1। वो मैंने इक्वेशन नंबर 4 माना और इक्वेशन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूट किया कहाँ पे, 3 में। ओके, सो 3 में सब्स्टिट्यूट किया, अब देख सकते हैं it got changed like this। अब मैंने cos R1 को अंदर ले जा रहा हूँ, देखिए cos R1 अंदर आ गया, बड़ा क्लियर है, इसका आपस में कैंसिलेशन हो जाएंगे। फाइन, ये आपस में कैंसिलेशन हो गया। सो कैंसिलेशन होने के बाद जो फॉर्म बच जाते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अगेन, अभी क्या क्या चेंज करना है हमें, एक तो ये चेंज करना है, दूसरा ये चेंज करना है। हमारा जो सबसे पहला वाला जो फेज था उसमें हमें पता है sin I1 अपॉन sin R1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, हमें पता है। तो इसमें से मुझे sin R1 का टर्म मिल जाएंगे, कैसे, sin ऑफ R1 इक्वल्स sin ऑफ I1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, सो दैट इज इट्स रिटन ओवर हियर। सो मैं क्या करूंगा, इस सब्स्टिट्यूशन को इक्वेशन नंबर 5 में दूंगा। ओके, इक्वेशन नंबर 5 इधर था आपका, है ना। सो sin R1 का जगह ये चले जाएंगे, सो sin R1 का जगह ये चले जाएंगे, देखिए x का टर्म चेंज हो जाएगा। सो एक पार्ट तो बच गया है ना, ये देखो ये चेंज हो गया, इधर ऐसे चेंज हो गया, ये sin R1 का टर्म को मैंने चेंज किया हुआ है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया है, ये बच गया, देखो, है ना। फाइन, सो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया, कैसे, ये म्यू GA को नीचे लिख दिया। सो sin I1 cos I1 sin I1 माइनस cos I1 इंटू sin I1 अपॉन म्यू GA इंटू cos R1। आप देख सकते हैं ये कॉमन है, तो इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में ये sin A कॉमन है, वो बाहर आ चुका है, cos I1 इंटू म्यू GA मल्टीप्लाइड बाय cos R1। अब सिर्फ हमारे पास चैलेंज बोले तो सिर्फ यही है। ओके, जो चेंज करना है उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल कंसिडर द फैक्ट दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर थीटा हो जाएंगे R1। ऑलराइट, सो cos स्क्वायर R1 हमारे पास इधर क्या है, cos R1, इसको चेंज करना है ना। सो cos स्क्वायर R1 का टर्म आ गया हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर R1। सो यू पीपल माइट बी वंडरिंग, इधर भी तो आ रहा है, बट sin R1 का टर्म हमारे पास है, देखिए ये ऑलरेडी हमने डिराइव कर चुका है ना, बाय कंसीडरिंग रिफ्रैक्शन एट फेज PQ।
सो साइन r1 तो हमें पता है बट cos r1 नहीं पता। सो cos r1 को हम sin r1 का टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद sin r1 पे हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ऑलराइट, सो हम अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं। डोंट फॉरगेट वी आर एट क्वेश्चन नंबर 7। चैलेंज सिर्फ ये है cos r1 है, अब हमें उसको चेंज करना है। तो sin cos स्क्वायर r1 का टर्म आ गया हमारे पास। ओके, सो cos स्क्वायर r1 इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर r1। सो sin r1 का वैल्यू हमें पता है, सो वो r1 इधर सब्स्टिट्यूट किया, सो वो जाएंगे sin i1 अपॉन म्यू जी द होल स्क्वायर, है ना। इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है और ये फॉर्म में आ गया। अब आप देखिए मेरे पास cos r1 का भी टर्म आ जाएंगे, कैसे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, पता है ना आपको, इसका अंडर रूट लिया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin i1 अपॉन म्यू जी द होल स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 8। ओके, बस अब कुछ नहीं बचा हुआ है, इक्वेशन नंबर 8 को उठा के सीधे इक्वेशन नंबर 7 पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, इक्वेशन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं इधर। सो r1 का जो टर्म है, cos r1 का जो टर्म है, उसका जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑलराइट, देखिए, सो हमें ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, x इंटू टी टाइम्स साइन i1, ये तो हमने पहले बाहर निकाल दिया था, 1 माइनस cos i1 अपॉन म्यू जी ए इंटू ए। देखिए ये हो गया आपका cos r1 का सब्स्टिट्यूशन, ये वाला पार्ट, ये cos r1 का सब्स्टिट्यूशन है। cos r1 को भी सब्स्टिट्यूट किया। नाउ टू मेक इट लुक सिंपलर, ये म्यू जी ए को मैं अंदर ले लिया। सो ये अंडर रूट लाइक स्क्वायर रूट के अंदर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका म्यू जी ए स्क्वायर, इधर बाहर कोई चेंज नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग दैट। म्यू जी ए स्क्वायर माइनस म्यू जी ए स्क्वायर इनटू, इधर मैंने ब्रैकेट खोल के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन म्यू स्क्वायर लिख दिया, दैट इज साइन स्क्वायर i1 अपॉन म्यू जी स्क्वायर। ओके, आप जानते हैं इधर ये कैंसिल हो जाएंगे। ऑलराइट, सो हियर this comes my final expression for lateral displacement। इस इक्वेशन को जब आप देखते हैं, like final conclusion, like to equation number 9, once you observe it very clearly, you can see one thing, ये जो x का वैल्यू है that will keep on changing, not changing, it will keep on increasing with respect to angle of phi। अब इस mathematical expression में देखो, you can very clearly you can see that i का वैल्यू बढ़ेंगे, x का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब आप मुझे एक बार बताइए, i का वैल्यू कहां तक बढ़ सकते हैं, i का वैल्यू 90 तक बढ़ सकते हैं। ओके, सो i का वैल्यू इट्स मूविंग टुवर्ड्स 90, फाइन, एंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर i बोले तो इधर i1, एंगल ऑफ इंसिडेंस i1 दैट इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमारा x का मैक्सिमम वैल्यू उस टाइम में क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 9 पे जितनी भी जो i1 का वैल्यू है ना, आप इसको 90 पुट करो। तो मैंने ये पुट किया 90, तो ये तो हो गया 0 पूरा टर्म, तो इसका कहानी खत्म। साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं 1 है, इधर भी मैंने 90 पुट किया, तो साइन 90 बोले तो 1 होता है। सो x इक्वल टू क्या आ जाएंगे, t आ जाएगा। ओके, विच मीन्स द lateral displacement of the emergent ray cannot exceed the thickness of the glass slab, या we can say max जो होगा that is equal to t only, that is thickness of the glass slab। So that is going to be the maximum what value for lateral displacement। Now some important conclusions regarding lateral displacement। सबसे पहली बात, ये सारे कंक्लूजन इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन नंबर 9 के बेसिस पे, सो आई एम टेकिंग दैट ऑन टू द स्क्रीन एज वेल। इक्वेशन नंबर 9 को भी मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, लेट मी मेक दैट पार्ट somewhat neat। सो देखिए, फर्स्ट थिंग, lateral displacement increases with thickness, क्योंकि इधर एक t है। ओके, इट इंक्रीजेस विद थिकनेस, t का वैल्यू बढ़ेगा, lateral displacement भी बढ़ेंगे। It increases with respect to angle of incidence i1। Okay, and second thing is that it increases with respect to
the value of refractive index of the glass slab as well. Okay, it increases with respect to the refractive index of glass slab as well, because आप इधर देख सकते हैं mu GA का term इधर है. Okay, so these are the some important conclusions that we can have regarding lateral displacement.